Good morning, everyone. How are you all? Hello, sir. I'm fine. Sir. Good morning. What about you? I'm also fine, thank you. In our last session, just we completed the the chapter explanation of the chapter number 7. In that chapter, we studied a story. एक कहानी पढ़ा किसके बारे में? Whittington and his cat. Cat. Also we discussed Cat. question. Today we are going to discuss question answers that is based on that particular story. So are you all ready for that? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So let us open the book first, then so that we can discuss the things. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just wait. So, beta, in our last class, already we have discussed few questions of this particular A section. Na? Till how many questions already we have discussed? Yes. Five. Five. Question number 5 का conclusion बोलने वाला है. Five. Okay. So why did Whittington send his cat on the ship? Ships already we have discussed. सभी लोगों ने लिखा भी होगा. The next question is the how did the cat help the sailors? Yes, sir. Sailors थे. उनकी cat ने कैसे help किया था? Who can speak the answer of this question? Who can tell? यशवर्धन सिंह बताइए. The cat helped the sailor get all rat from the ship. फिर से बोलिए बेटा. Cat helped the sailor to eat all rat from the ship. चलिए ठीक है कोई बात नहीं. ठीक है. जो नाविकों की आस्था मौर्य बताइए. The cat helped the sailor by killing all the rats in the ship. हाँ, it's correct. फिलहाल यशवर्धन सिंह ने भी सही आंसर बताया था, बट उनका जो सेंटेंस जो ग्रामेटिकली थोड़ा जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा रॉन्ग था. वो भी यही बातें कहना चाह रहे हैं. मुस्कान प्रजापति बताइए. Whittington sent his cat on the ship because Whittington have nothing to give. इसका आंसर बता रही हो बेटा. आप किसका आंसर बता रही हो? मुस्कान. Five का. बेटा Fifth का. ध्यान से सुनिए. पहले आपको क्लास में इसका मतलब आप ध्यान नहीं दे रही हो. आई एम आस्किंग दैट कि हाउ डिड द कैट हेल्प द सेलर. क्वेश्चन नंबर 5 तो कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ना. आज नंबर से शुरू करना है. द क्वेश्चन इज हाउ डिड द कैट हेल्प द सेलर. हाउ डिड द कैट हेल्प द सेलर. साक्षी पासवान. The cat helped the sailor because he gave his cat on the captain. The ship. इस तरीके से आप और मुंह पीछे करके बोलोगे तो कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा मुझे. अनुष्का यादव आप बताइए बेटा. The cat helped the sailors by killing all the rats. Yes, कैट ने क्या किया था? सारे रैट्स को खत्म कर लिया था, मार दिया था. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन से ही तो आंसर बनाना होता है. द कैट हेल्प यहाँ पे आपका पास्ट टेंस में है तो हेल्प हो जाएगा. ये हाउ डिड है ना, तो पास्ट टेंस का आंसर पास्ट टेंस में दीजिए. द कैट हेल्प्ड द सेलर. कैट ने सेलर की हेल्प किया. कैसे? बाय ईटिंग. Kill the rat. by killing या by eating या जो भी है. by killing all the rats. by killing would be better. killing सही रहेगा. सही कहा. तो how you all write the answer of this question? Let us write. A cat helped the sailor by killing all the rats on the ship. ठीक है, यही तो आंसर होगा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Also you all can write in this way. Yes, sir. लिख ले जाएंगे ना सभी? Yes, sir. Yes, sir. इसको erase Yes, sir.
Now come to the seventh question. Why was the king of Barbary helpless? जो king of Barbary है, जो बारबरी का जो किंग था वो हेल्पलेस क्यों था? शिवांगी त्रिपाठी. Why was the king of Barbary helpless? Shivanya Chaudhary. The king of the Barbary is helpless because there was no solution to get rid of the rats. Very good, very good. Shivanya Chaudhary, आप भी बताइए. The king of the Barbary helps the ship to reach coast of Barbary. बरखा एक बार आप भी कोशिश करेंगी? अंचित, बरखा, अंचित. मैं दूसरे का नाम ले ले रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना माइक ऑन करके बंद कर दो. बताना चाह रही हो, मैंने आपका नाम लिया तो आप बताइए. आप बोलना शुरू करेंगे तो जिसका नाम बाद में लिया है वो अपने आप शांत हो जाएगा. बरखा, अंचित, कोई पहले से बोल रहा हो? चलो अभिनय पांडे बताइए. The king was a Barbary. Barbary helped to the बेटा the अभी आप लैंग्वेज के पार्ट को छोड़ दो, इंग्लिश में आप बता रहे हो. आप हिंदी में ही सोचो कि जो बाबरी का जो किंग था वो हेल्पलेस क्यों था. मुझे हिंदी में ही समझा दीजिए. सर जो बालबरी का किंग था वो इसलिए हेल्पलेस था क्योंकि वहां पर चूहे थे ज्यादा. वहां पे चूहे बहुत ज्यादा थे. ठीक है, ठीक है. यानी आपको स्टोरी कुछ तो ध्यान है. चलो बहुत अच्छे. दीपक सिंह, राजपाल, आप लोग भी कोशिश करिए. The king of Barbary was helpless because as he could not get rid of the rats in the palace. वो उस जो चूहों से छुटकारा नहीं पा रहा था, चूहों से वो छुटकारा नहीं पा रहा था. उसने बहुत सारे इनाम भी घोषित कर दिए थे बट कोई भी नहीं हेल्प कर पा रहा था. समझ में आया? Yes, sir. तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर? क्या लिखेंगे? हाउ यू कैन राइट? गौरव पासवान. अंचित एक बार आप कोशिश करिए. The king of Barbary helpless because there was many rats in his Barbary. इन हिज पैलेस. बारबरी नहीं. चलो In his ठीक है. palace. आपका एक जगह ये है. संजीव कुमार अपना वीडियो ऑन रखिए बेटा और अपना फोन रोटेट करा के आप भी बुक्स लेकर के बैठ करके कंप्लीट करिए. फोन हाँ रोटेट करा के रख दीजिए एग्जाम पे. आपका फिलहाल रोटेट स्क्रीन नहीं ऑन है, आप सीधा ही फोन रख सकते हैं. आपका स्क्रीन रोटेट ऑन, ऑटो रोटेट ऑन नहीं है आपके मोबाइल फोन में, इसलिए आपका पिक्चर नहीं रोटेट हो रहा है. कोई बात नहीं, फिलहाल आप पढ़ाई करें. तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? लेट अस राइट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस टू. यहीं पे लिख दे रहा हूं. कैसे लिखेंगे? द किंग ऑफ, ये बारबरी, ये जगह का नाम है, कैपिटल लेटर से शुरू होगा ना. हेल्पलेस as he क्या लिखेंगे? as he could not get rid of the cats from his palace. अपने पैलेस से जो रैट्स थे उनसे छुटकारा नहीं पा रहा था ना, यही तो लिखेंगे. as he could not, could could not get rid of the rats in his palace. अपने पैलेस में वो चूहों से छुटकारा नहीं पा रहा था. इट वॉज द, इसीलिए वो हेल्पलेस था. द किंग ऑफ बार्बरी हेल्पलेस एज ही कुड नॉट गेट रिड ऑफ द रैट्स इन हिज पैलेस. बहुत छोटे में आंसर दे देना है, बहुत लंबा नहीं खींचना है. ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
in this way you all can write the answer of the 7th question, I hope. Now come to the 8th question. Why did the master call Washington? No, Whittington, sorry. Why did the master call Whittington Mr. Whittington? Why did the master call Whittington to Whittington, Mr. Whittington? यानी Whittington को उनके मास्टर ने मिस्टर Whittington क्यों कहा? Why did the master call? जो मास्टर ने क्यों बोला, क्यों कहा Whittington को मिस्टर Whittington? कौन बता सकता है इसका आंसर? बहुत आसान आंसर है, आपके बुक में ही लिखा भी हुआ है। मुस्कान प्रजापति बताएंगी, हैंड रेज किया इन्होंने। बताइए बेटा। सर हिंदी में भी बता सकते हैं बेटा इंग्लिश में इसका हिंदी में फिलहाल आप बता दीजिए। इंग्लिश में बिल्कुल आपके बुक में ही आंसर दिया है, लेकिन फिर भी आप हिंदी में बताइए। Why did the master call Whittington to Mr. Whittington? The master called Whittington Mr. Whittington because his cat Whittington's cat सर जिस प्लेस में मिस्टर पिजरान की बोट गई थी, कैट ने उनके साथ गए थे, तो कैट ने उनका सिर ऊंचा कर दिया। कोई बात नहीं, जस्ट वेट। बरखा, नाउ योर टर्न। बरखा, आवाज नहीं आ रही है आपकी। बेटा बरखा आवाज नहीं आ रही है। अंचित आप बताइए। The master called him Mr. Whittington because he is no longer poor little boy. Yes, he was no. आपने जो बताया वो आंसर सही है, बट डिफरेंट वर्ड्स में। फिलहाल कोई बात नहीं, और भी दूसरे बच्चे भी कोशिश करें। अभिनय पांडे आपने भी हैंड रेज किया, बताइए। सर जो विटिंगटन के सर जो किंग था उसने इसलिए कहा कि उसे मिस्टर विटिंगटन कहो क्यों से उसने बहुत बड़ा काम किया था वो कैट। ठीक है, गौरव पासवान आप बताइए। Go send him in and tell him of his fame, and you all must call him Mr. Whittington from now on. He is no longer a poor little boy. हाँ, तो आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ दे रहे हो ना। पैराग्राफ को आंसर की तरह आंसर उसी में से आंसर आपको बताना है। क्यों उसको मिस्टर विटिंगटन बोला गया? बिकॉज लास्ट में उसने बोल दिया। यशवर्धन सिंह आप बताइए। यशवर्धन सिंह। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। Because he was no longer poor boy. Yes, because he was no longer the poor boy. अंचित यशवर्धन दोनों सिंह ने बताया, दोनों ने सही आंसर बताए हैं, दोनों ने सही आंसर्स बताए हैं। He was not a poor little boy anymore. So what you can write? You can write the answer for this questions in this way. क्लास शिवान्या चौधरी आप भी बताइए। The master called Whittington Mr. Whittington because the boy The master, चलिए ठीक है बहुत हो गया। The master called Whittington as he was not a poor little boy. यही तो आपके बुक में लिखा है, आपके बुक में लिखा है। Let us see that what is written into your book. उसको भी देखते हैं।
इसी क्वेश्चन को, यहीं से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे लिखा है गो सेंड हिम इन एंड टेल हिम ऑफ हिज फेम एंड यू ऑल मस्ट कॉल हिम मिस्टर विटिंगटन। उसको आपको मिस्टर विटिंगटन बोलना चाहिए फ्रॉम नाउ ऑन, बिकॉज ही इज नो लॉन्गर अ पुअर लिटिल बॉय, ही इज नो लॉन्गर अ पुअर लिटिल बॉय। The master called Whittington to Mr. Whittington as he was not a poor little boy anymore, as he no longer a poor little boy। आप इसको भी लिख सकते थे, लेकिन आप इसको पास्ट टेंस में आपको लिखना था। he is not नहीं, he was no longer a poor little boy, आप ऐसे लिख सकते थे। पास्ट टेंस में अगर क्वेश्चन रहे तो पास्ट क्वेश्चन में ही आपको आंसर भी लिखना पड़ेगा, पास्ट टेंस में ही। ठीक है? यस सर। स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, कॉल्ड की स्पेलिंग गलत लिखी है, आप लोग सही कर लीजिएगा। Okay, in this way you all can write the answer for the 8th question. Now move on the next question. Yes, I was Waddington stunned. Stunned means क्या होता है? Stunned means अचंभित रह जाना। क्या होता है? Surprise. दंग रह जाना, अचंभित रह जाना। It is another word for surprise. Why was Waddington stunned? Waddington क्यों stunned रह गया? क्यों दंग रह गया? आस्था मौर्य। Whittington was stunned because her dream was come true. Actually, Whittington was stunned. वो क्यों stunned रह गया था? After seeing the seeing the treasures, जो कि कहाँ के किंग ने भेजा था? क्या कौन सी जगह थी? बारबरी। Yes. Yes, sir. Whittington was stunned when he saw the treasures. When he saw the treasures for him, उसके लिए जो बारबरी के किंग ने भेजा था। He was stunned. He was stunned as he was seeing the treasures for him that was sent by the king of the Barbary. हाँ बेटा राजपाल, what do you want to say? तो अभी 9th का आंसर आप लोगों को समझ में आया? क्यों, क्या लिखना है, कैसे लिखना है? Yes, sir. मुस्कान मैं आऊंगा बेटा, डोंट वरी, डाउन योर हैंड्स। मुस्कान प्रजापति, आई विल आस्क द क्वेश्चन। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, बी सी पूरे क्वेश्चन ही रहे हैं। तो व्हाई वाज व्हिटिंगटन स्टन्ड, इसका आंसर आप बताइए राजपाल। The Whittington stands because is the Barbary kings is two treasures for Whittington. आदर्श आदित्य you try. Mr. Whittington stunned. He was the treasure which sent the Barbary king. चलो शिवांगी त्रिपाठी। Yes, sir. Whittington was stunned because he saw treasure. Yes, good. Because when he saw the treasures for him, उसके लिए जो treasures था, उसको जब उसने देखा, that had been sent by the king of Barbary। तो यही आंसर भी लिखना है। अंचित बताइए, आप भी हैंड रेज कर रहे हैं, आप भी बताइए। Whittington was stunned because his long Christian dream was true. Whittington stunned. Whittington was stunned. आप यहाँ पे was STU and Whittington was stunned because कैसे आवाज आ रही है? Treasures for him that had been sent by
the king of the Barbary. Okay, in this way you can write the answer for the 9th question. Whittington was stunned because when he saw treasures for him that had been sent by the king of Barbary. बिकॉज को यहाँ पे हटा भी सकते हो, व्हेन अगर आपने यूज किया है देन ऑल्सो बिकॉज का यूज करने की जरूरत नहीं है. Whittington was stunned, comma, when he saw treasures for him that had been sent by the king of Barbary. Okay? Yes, sir. चलिए अभी मैं इसको रेज करता हूँ. Yes, sir. Now come to the B section. Let us discuss these questions. It is also based on the story. अभी आप लोग को अपने मर्जी से नहीं कुछ बताना है. As per the story, जो स्टोरी आपने सुना है उसके हिसाब से आपको आंसर्स करना है. The first question is, Whittington would stop his daydreaming and believe that someday things would be different. यहाँ पे कुछ आपको स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है. Whittington would stop his daydreaming and believe that someday things would be different. What do things refer to in the above line? जो ये ऊपर ये लाइन बोला गया है इसमें थिंग्स से क्या अभिप्राय है, थिंग्स से क्या मतलब है, थिंग्स किसको इंडिकेट कर रहा है. वन डे थिंग्स वुड बी डिफरेंट, सम डे थिंग्स वुड बी डिफरेंट, यानी कुछ दिन एक दिन ऐसा आएगा जब जो थिंग्स है वो चेंज होगी, यानी चीजें बदली होंगी. तो वो चीजों से क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है, किसको इंडिकेट किया जा रहा है. ऐसा अभी आप लोग कई बार कहते हुए सुना है ना, कोई बात नहीं आज आप भाई कर लो, लेकिन समय बराबर नहीं होता है. तो समय बराबर नहीं होता मतलब इस समय का मतलब क्या, दैट मीन्स कि चीजें बहुत ही जल्दी कुछ चीजें हो सकता है बदल जाए एक दिन चीजें, यानी एक दिन थिंग्स विल बी चेंज्ड. ऐसे इंग्लिश में अगर आप कहते हैं ना एक दिन चीजें जरूर बदलेंगी, तो वो इंग्लिश में इसको बोलेंगे सम डे थिंग्स वुड बी डिफरेंट, यानी जो चीजें होंगी वो अलग होंगी, यानी कंडीशंस जो होंगी, जो सिचुएशन होगा वो एक जैसा नहीं रहेगा. दैट विल बी द डिफरेंट. आज मैं सो रहा हूं, आज मैं लेट्स से कि आज मैं परेशान हूं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहेगा. थिंग्स विल बी डिफरेंट. जो सिचुएशन है, जो कंडीशंस है, इट विल बी डिफरेंट. तो थिंग्स किसको इंडिकेट कर रहा है, कंडीशंस को इंडिकेट कर रहा है, सिचुएशंस को इंडिकेट कर रहा है. अभी वो उसके यहाँ पे एक कुक की हेल्प कर रहा था, और जब वो कुक उसके ऊपर चिल्ला रहा था कि आप ये काम करो, यानी उसको डे ड्रीमिंग नहीं करने दिया, तो वो कह रहा था कोई बात नहीं, एक दिन समय बदलेगा, एक दिन चीजें बदलेंगी, यानी एक दिन समय बदलेगा, मैं हमेशा ऐसे नहीं आप मेरे ऊपर चिल्ला पाओगे या भड़क पाओगे. ठीक है. थिंग्स इन दिस रेफर, इन दिस कॉन्टेक्स्ट जो थिंग्स है वो किसको रेफर कर रहा है, इट इज रेफरिंग टू द सिचुएशन और कंडीशन इन विच विटिंगटन वाज लिविंग. जो विटिंगटन जिस कंडीशंस में रह रहा था उस कंडीशंस को, उस सिचुएशंस को इंडिकेट कर रहा है कि वो कंडीशंस बदलेंगी. तो हाउ यू कैन राइट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इन द अबव, इन दैट लाइन थिंग्स इज कंसिडर्ड. इन द अबव लाइन, आप ऊपर लाइन लिखें तो ठीक है. द गिवन लाइन ऐसे आप लिखेंगे तो इन द गिवन लाइन, इन द गिवन लाइन यहाँ पे ये आपका थिंग्स आपको ऐसे लिखना पड़ेगा. थिंग्स इसको यहाँ पे ना लिख करके यू कैन स्टार्ट लाइक दिस. Things in the given line. Things in the given line refers. Things in the given line refers. किसको रेफर कर रहा है, conditions, situations. Things in the given line refers to the conditions or situations. कंडीशंस ना होकर के कंडीशन होगा. ठीक है, कंडीशन और सिचुएशन. थिंग्स इन द गिवन लाइन रेफर्स टू द कंडीशन और सिचुएशन. उस कंडीशन या उस सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा था, रेफर कर रहा था.
in which Whittington was living, यही तो होगा, Whittington was Yes, sir. living। जो विटिंगटन जिस कंडीशन में रह रहा था, जिस सिचुएशन में रह रहा था, वो सिचुएशन, वो कंडीशंस बदलेंगी, वो कंडीशंस, वो सिचुएशंस बदलेंगी, थिंग्स बदलने को लेकर के जो उसका मतलब निकल रहा था, जो उसका अभिप्राय निकल रहा था। ओके, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्या पूछा गया है, उसका आंसर कैसे लिखना है। Yes. Now come to the next question. Why does Mr. Fitzwarren refuse to take a part of the treasure? Now the next question. Why does Mr. Fitzwarren, जो Mr. Fitzwarren ये कौन था, ये बताइए पहले, Mr. Fitzwarren कौन था? Who was the Mr. Fitzwarren? Who was Mr. Fitzwarren? A merchant. Merchant. यानी जो विटिंगटन का मास्टर था, विटिंगटन का एक तरीके से मालिक था। तो विटिंगटन के मालिक ने यानी मिस्टर फिट्जवरिन ने क्यों रिफ्यूज किया? रिफ्यूज मतलब मना करना। क्यों रिफ्यूज किया? टेक अ पार्ट ऑफ द ट्रेजर। जब विटिंगटन ने उस ट्रेजर्स के कुछ पार्ट्स को विटिंगटन अपने मालिक को, अपने मास्टर को, मिस्टर फिट्जवरिन को ऑफर किया। जस्ट वेट बेटा। जब मिस्टर विटिंगटन ने अपने मालिक यानी मिस्टर फिट्जवरिन को, मर्चेंट को जब कुछ ट्रेजर्स ऑफर किया तो उन्होंने मना क्यों कर दिया था? Why he refused to take a part of the treasures? क्या होगा? इसका आंसर क्या बुक में दिया है? नहीं, लेकिन आप लोग को इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताना है। When he saw the treasure, Whittington was stunned. He long cherished dream had come true. But he begged his master to take a part of it. उसने अपने मास्टर को, अपने मर्चेंट को, जो मिस्टर फिट्जवरिन के सामने मतलब ऑफर क्या किया उसने, मतलब एक तरीके से बेग किया, रिक्वेस्ट किया। यहाँ पे बेग्ड मतलब एक होता है ना भिखारियों की तरह कहना, यानी रिक्वेस्ट करना। लेकिन अब यहाँ पे जिसके पास धन है वो भिखारियों की तरह थोड़ा बोलेगा, वो रिक्वेस्ट करना। यहाँ पे ये वर्ड यूज किया गया, केवल रिक्वेस्ट की जगह पे ये वर्ड केवल यूज किया गया है। तो बेग्ड मतलब एक तरीके से उनसे रिक्वेस्ट किया कि कृपया आप भी कुछ ले लीजिए। लेकिन क्या हुआ? बट मिस्टर फिट्जवरिन वुड हैव नन ऑफ इट। मिस्टर फिट्जवरिन ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? यही तो पूछा गया है। क्यों नहीं लिया? आप लोग कुछ सोच के बताइए। इसका आंसर तो डायरेक्टली तो आपको नहीं कि आपके बुक में लिखा हुआ हो, आप देख के बता दें। वो ए सेक्शन वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन, ए सेक्शन वाले क्वेश्चंस आप देख करके बता दिए। इसको तो आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा ना। मिस्टर फिट्जवरिन refused to take a part of treasures because क्यों? नहीं आ रही है बेटा, मेरी आवाज सभी को जा रही है कि कुछ बच्चों को केवल जिसके पे नेटवर्क कम होगा उन्हीं के यहाँ पे नहीं जा रही होगी? एक बार कंफर्म करें। ऑल द स्टूडेंट्स आर गेटिंग माय वॉइस प्रॉपर्ली? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ठीक है, कोई बात नहीं। Yes, sir. सिमरन भारती को लेकर के कई बार हो सकता है कि जिसके यहाँ पे नेटवर्क कम होगा। बेटा ओनली 5 मिनट इज रिमेनिंग, तो मैं बहुत ज्यादा वेट नहीं कर पाऊंगा आप सभी के क्वेश्चंस का। आपको फिलहाल यहाँ पे क्या है, जो रिवार्ड मिला था वो तो कहीं ना कहीं बार्बरी के किंग ने जो रिवार्ड भेजा था वो किसको भेजा था? विटिंगटन के लिए भेजा था। आस्था मुझे बताइए आपका क्या आंसर है? Mr. Fitzwarren refused to take a part of the treasure because the treasure is of Whittington and his cat. जो ट्रेजर्स था इट वाज सेंट फॉर द विटिंगटन, मतलब जो रिवार्ड था इट वाज फॉर द विटिंगटन, नॉट फॉर द मर्चेंट। इसीलिए he refused to take the part of the treasures. You all can write बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग शब्दों में आप लोग इसको लिख सकते हैं, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में जो मेरा इनाम नहीं है मैं नहीं लूंगा। अब वो राजा आदमी थे, नहीं लिए।
है कि नहीं? चलिए ठीक है, नाउ वी हैव टू राइट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपका बी का जो 2 होगा कैसा होगा? मिस्टर फिच refused to take a part of as he was not as he saw the treasure as he wanted, उन्होंने चाहा था कि विटिंगटन पूरा ले ले, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं फिलहाल राजा के पास आया था। तो क्या लिखेंगे? मिस्टर फिशबर्न रिफ्यूज्ड टू टेक अ पार्ट ऑफ द ट्रेजर्स एज ही वांटेड टू टेक, एज ही वांटेड वो क्या चाहते थे कि विटिंगटन सारा पार्ट इसका ले ले। एज ही वांटेड विटिंगटन टू हैव इट ऑल द पार्ट ऑफ दिस, एज ही वांटेड विटिंगटन have it all as the well deserved. Mr. Fitzgerald refused to take a part of the treasures as he wanted Wiggin to have it all as the well-deserved reward for getting rid of the cats. जो cats से cats नहीं rats होना चाहिए ना? Yes sir. इसमें होता क्या है? Mr. Fitzgerald refused to take a part of the treasures. क्यों यहाँ पे refuse किया? Because he wanted that Whittington to have its all the parts. वो ऐसा चाहते थे कि Whittington ही इसका पूरा पार्ट ले, because he was the only deserved candidate. He was the only deserved person to get this reward. ये रिवार्ड जो था उसका deserved person कौन था? Whittington ही था, क्योंकि उसी की कैट ने कहीं ना कहीं जो जहां से आया था उसके राजा को रैट से छुटकारा दिलाया था। तो आई होप सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बी सेक्शन, राइट 2 एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब विटिंगटन, एक्सप्लेन योर चॉइस ऑफ एडजेक्टिव। राइट 2 एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब विटिंगटन, विटिंगटन को डिस्क्राइब करने के लिए 2 एडजेक्टिव बताइए। एक्सप्लेन योर चॉइस ऑफ एडजेक्टिव, तो आपका चॉइस ऑफ एडजेक्टिव है, आपने क्यों वो चुना उसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर तो आप लोग को अपनी मर्जी से करना चाहिए। विटिंगटन के पहली बात, विटिंगटन को या विटिंगटन के बारे में बताइए, को एक्सप्लेन करिए। विटिंगटन जो एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है? वो नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताए। तो नाउन आपको नाउन दे रखा है यहाँ पे विटिंगटन, विटिंगटन की विशेषता बताने वाले ऐसे 2 सेंटेंस, 2 एडजेक्टिव बताइए, सेंटेंस नहीं 2 एडजेक्टिव बताइए कि उनकी विटिंगटन के अंदर की विशेषता क्या थी जिसको परिभाषित करे, जो उसके बारे में बताए। कोई ऐसा एडजेक्टिव वर्ड बताइए विटिंगटन के लिए जो आपके बुक में यूज किया गया हो या आप पढ़ने में लग रहा हो, आप स्वयं देना चाहें। बेटा ओनली 1 मिनट इज रिमेनिंग, जल्दी से कोशिश करिए। हाँ बेटा बताए। काइंड-हार्टेड, ही वाज वेरी काइंडली पर्सन, he was very kindly person। क्यों? इसका रीजन भी आपको बताना है। एक्सप्लेन योर चॉइस, बिकॉज क्यों होगा, क्यों, why you are telling that he is a kind hearted? क्योंकि उसने जो ट्रेजर्स था वो अपने सभी जो अपने सहकर्मी थे और जो भी उनके सर्वेंट्स थे सभी के साथ बांट दिया था ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था ना, शेयर किया था ना। यस सर। तरीके से वर्ड यूज करना है, उसका भी रीजन आपको बताना है। कर ले जाएंगे? यस सर। करिएगा अपनी मर्जी से। यस सर।
लेट अस गो बियॉन्ड द स्टोरी। बेटा लास्ट मिनट चल रहा है, आपको जो डिस्कस किया गया सभी लोग क्वेश्चन आंसर लिख करके आज जरूर पिक भेज दीजिएगा, सभी के सभी। आप अपने बुक में लिखें या नोटबुक में लिखें, इट इज ऑन यू, बट ऑल्सो यू ऑल नीड टू कंप्लीट योर वर्क एंड सेंड द पिक ऑफ योर। क्वेश्चन नंबर सी के इन दोनों क्वेश्चंस को भी आपको अपनी मर्जी से ही करना है। सेकंड क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। व्हाट डू यू थिंक रिचर्ड विल डू विद ऑल द ट्रेजर्स? आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं जो रिचर्ड है वो विल डू विद ऑल द ट्रेजर्स? जो रिचर्ड है या रिचर्ड विटिंगटन, विटिंगटन जो उस ट्रेजर जो उसको मिला है उसके साथ वो क्या करेगा? व्हाट डू थिंक? जितना भी ट्रेजर, तो अब ये तो आपके ऊपर है ना कि वो घर बनाएगा, घर जाएगा, इंडिया आएगा, वो चला गया था लंदन चला गया था। अब मतलब वैसे मैंने लंदन कह दिया, वो कहाँ गया था? लंदन ही तो गया था शायद। Yes, sir. लंदन गया था तो फिर